Good afternoon, students. I am available for you now. My topic is conducting polymer. In this word, there is two words, that is conducting and polymer. Conducting means conduction. Electricity जो flow करती है, flow of electricity is called conductivity. ठीक, और वो भी conductivity किसमें है? किसी पॉलीमर के अंदर. कंडक्टिविटी किसके अंदर है? किसी पॉलीमर के अंदर. मोस्ट ऑफ द पॉलीमरिक मटेरियल आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर. Most of the polymeric material are electrically insulated. In fact, we are using in polymeric material are using in insulation of wires. You know, हम insulation of wires करते हैं, वायर के ऊपर लगाते हैं polymeric material को. But now we are contradicting our statement. Now we are called, these are conducting polymer. Those polymer which conduct electricity are called conducting polymer. Is it? ठीक है. तो है क्या कि अभी तक जो भी ऐसे पॉलीमर जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें वो कंडक्टिंग पॉलीमर कहलाते हैं. ठीक है. लेकिन अभी तक हमने जो पढ़े सारे नॉन कंडक्टिंग पॉलीमर, बिकॉज इन एवरी एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमर वी I told you that this polymer is insulating wires. मैंने भी आपसे बताया था कि इंसुलेटिंग वायर्स के ऊपर हम इंसुलेशन का काम करेंगे. ठीक है. तो मैं आपको बताऊं, मोस्ट पॉलीमरिक मटेरियल आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज देयर इज लो इलेक्ट्रॉन्स या लो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. दैट वाई दीज आर यूज एज that they use as non-conducting polymers. Nowadays there are some conducting polymers. There are certain type of polymer which conduct electricity are called conducting polymers. If you talk about these polymer, there are some examples. जैसे मैं यहाँ लिखा भी है polyacetylene, polyparaphenoline. ठीक है. If you talk about the classification of conducting polymer, there are two classes in which we categorize these polymers. First one is ICP, that is intrinsically conducting polymer, and another one is extrinsically conducting polymer. In ICP, why it is called intrinsically conducting polymer? Because the conductivity is due to the internal structure. कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है? उनकी आंतरिक संरचना की वजह से उसके अंदर कंडक्टिविटी आती है. दैट इज कॉल्ड आईसीपी, इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर. इज इट? नाउ सेकंड वन इज एक्सट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर, ईसीपी. ईसीपी क्यों? दैट इज वर्ड इज एक्सटर्नल. तो कुछ हम बाहर से ऐड करेंगे. ठीक है. तो कंडक्टिविटी ड्यू टू द एक्सटर्नल सब्सटेंसेस व्हिच वी एडेड इन अ पॉलीमर that behave as conducting polymer. Is it? Now start from first line. Polymer that conduct electricity are called conducting polymer. Repeat it. Polymer that conduct electricity, yeah, those polymer which conduct electricity, these are called conducting polymers. There are two type of conducting polymer: intrinsically conducting polymer and extrinsically conducting polymer. In intrinsically conducting polymer, conductivity is due to the internal structure, and extrinsically conducting polymer, the substances added by externally that causes conductivity. Is it? Now ICP further classified into two groups. That one is, first one is पॉलीमर हैविंग कॉन्जुगेट पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम. इज इट? पहला जो क्लासिफिकेशन है आईसीपी का वो है पॉलीमर हैविंग कॉन्जुगेट पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और दूसरा है डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर. डोपिंग करेंगे. ठीक है. इसमें अगला एक्सटेंसिकली में बात करें, दो यहां भी डिवाइड है, दो यहां पे भी डिवाइड है. एक्सटेंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर में कंडक्टिंग एलिमेंट फिल्ड पॉलीमर और दूसरा है ब्लेंडेड कंडक्टिंग पॉलीमर. आप देख सकते हैं, चाहो तो एक स्क्रीनशॉट भी ले लेना. ठीक है. अब बात करते हैं इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर की. कंडक्टिंग पॉलीमर तो आपके दिमाग में आ गया होगा. मोस्ट ऑफ द पॉलीमरिक मटेरियल आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इनफैक्ट सम आर यूज्ड इन इंसुलेशन ऑफ wires and cables also, but there are certain polymer which conduct electricity are called conducting polymer. Is it?
if you talk about the classification of conducting polymer, there are two type of polymers: intrinsically conducting polymer and extrinsically conducting polymer. Intrinsically conducting polymer are further divided into two categories: polymer having conjugate pi electron system or doped conducting polymer. If we talk about polymer having conjugate pi electron system, समझिएगा इसको कि पॉलीमर में conjugate pi electron system हो, that is alternate से ऐसी पॉलीमरिक चेन जिसमें alternate सिंगल और डबल बॉन्ड हो, alternate सिंगल और डबल बॉन्ड हो, तो एक ये conjugate सिस्टम बनेगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, आसानी से मूव करेंगे. That is called polymer having conjugate pi electron system. अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे. ठीक है. अगली बात हम कर रहे हैं इसमें कि डोपिंग की बात हम करते हैं, डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर. तो ये तो हो गया हमारा पॉलीमर जिसके अंदर की कंजुगेट पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड हो. ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंजुगेट पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम. अगर हम बात करें डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर की, तो डोप कंडक्टिंग पॉलीमर होते क्या हैं, ये बेसिकली पॉलीमर होते हैं. पॉलीमर के अंदर प्रॉपर्टी होती है तो उनके अंदर लो कंडक्टिविटी होती है. लो कंडक्टिविटी होती है दैट पॉजेस, इनके अंदर तो दीज पॉलीमर हैव लो कंडक्टिविटी बट इन फैक्ट दे हैव लो आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. सो दीज आर इजिली ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस. इनको बहुत आसानी से हम ऑक्सीडाइज रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी तो लो है. अभी मैंने बताया पॉलीमर की कंडक्टिविटी लो है, लेकिन हम इनको क्या कर सकते हैं क्योंकि इनके पास लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, जिसकी वजह से ये आसानी से क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो जाते हैं. अब हम इन पॉलीमर्स को आसानी से ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करेंगे. जब भी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन. ठीक है, तो जब गेन होगा और जब लॉस होगा, सॉरी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, तो जब लॉस होगा और जब गेन होगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे घटेंगे, चार्ज डेवलप होगा. ठीक है, और जब चार्ज डेवलप होगा तो इट मींस ये कैसा बिहेव करेगा, ये कंडक्टिविटी इस पॉलीमर के अंदर आ जाएगी और कंडक्शन होगा इस पॉलीमर के अंदर. तो अगर हम बात करें इसमें कि अगर डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर की बात करें तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय आईसीपी. हम बात करें इट इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग पॉलीमर या ट्रीटिंग पॉलीमर विद चार्ज ट्रांसफरिंग एजेंट. हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक चार्ज ट्रांसफरिंग एजेंट के साथ इसको हम ट्रीट कर रहे हैं. अब इसकी कंडक्टिविटी जो होगी कई गुना बढ़ जाएगी. द कंडक्टिविटी इंक्रीजेस अ फैक्टर ऑफ 10 to power 12. ठीक, व्हेन द आईसीपी, अगर आईसीपी जान रहा ना क्या, इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर आर डोप्ड विथ इलेक्ट्रॉन डोनर. अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन डोनर के साथ करें सच एज एल्किली मेटल्स, ठीक है, इनके साथ अगर हम करें, या हम आईसीपी को ट्रीट करें, आईसीपी को ट्रीट करें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जैसे कि आपके हेलोजन्स वगैरह. ठीक है, आयोडीन, ब्रोमीन और आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड वगैरह, इनके साथ हम ट्रीट करते हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनर, तो इलेक्ट्रॉन डोनर की वर्ड की अगर इलेक्ट्रॉन डोनर के साथ ट्रीट करेंगे तो दैट इज कॉल्ड एंडोपिंग कहलाएगा. इलेक्ट्रॉन डोनर के साथ अगर हम आईसीपी को ट्रीट करेंगे तो एंडोपिंग, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के साथ ट्रीट करेंगे तो पी डोपिंग. तो डोपिंग को भी हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, एंडोपिंग और पी डोपिंग. एंडोपिंग में हम लेंगे बेसिकली डोनर, यहां डोनर होंगे जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, और पी में हम लेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को लेंगे. ठीक है, तो बात करते हैं एंडोपिंग की. एक बार फिर समझ लीजिएगा डोप कंडक्टिंग पॉलीमर कैसे बनाते हैं. हम आईसीपी को ट्रीट करते हैं विद अ चार्ज ट्रांसफरिंग एजेंट. ट्रीट आईसीपी इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर ट्रीटेड विद अ चार्ज ट्रांसफरिंग एजेंट. ठीक है, और चार्ज ट्रांसफर एजेंट दो तरीके से हो सकते हैं, या तो हम इलेक्ट्रॉन डोनेट करा के कर सकते हैं ट्रीट, या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो पॉलीमरिक चेन. अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो एंडोपिंग होगा, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो पी डोपिंग. डोपिंग दो प्रकार की होगी, एंडोपिंग और पी डोपिंग. ठीक है, इन एंडोपिंग अगर हम बात करते हैं एंडोपिंग की, इन एंडोपिंग आईसीपी इज ट्रीटेड विथ लुईस बेस. हम किस साथ ट्रीट कर रहे हैं,
लुईस बेस के साथ, ये वर्ड याद रखिएगा, यहां पे हम लुईस बेस के साथ ट्रीट करते हैं एंडोपिंग में। इन एंडोपिंग आईसीपी इज ट्रीटेड विथ लुईस बेस, और जब भी हम लुईस बेस के साथ ट्रीट करेंगे, जैसे लुईस बेस ले ले एग्जांपल, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, तो इनके साथ अगर हम ट्रीट करते हैं, या आयरन क्लोराइड भी हो सकता है, FeCl3 ये हो गया, इनके साथ अगर हम ट्रीट करते हैं तो क्या होगा, यहां पे रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन टेक्स प्लेस। जब भी हम लिथियम, सोडियम, कैल्शियम और आयरन क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं तो रिडक्शन टेक्स प्लेस एंड नेगेटिव चार्ज क्रिएटेड ऑन पॉलीमरिक बैकबोन। तब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा पॉलीमरिक बैकबोन पे। आप चाहो तो एग्जांपल मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, जगह कम है लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पे एग्जांपल लिख दे रहा हूं। देखिए मैंने एग्जांपल ले लिया, ये पॉलीमरिक बैकबोन है हमारी, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड लगा देंगे इसमें। अब हमने क्या किया, इसको हमने किसी लुईस बेस के साथ ट्रीट किया, ठीक है। जब हम लुईस बेस के साथ ट्रीट करेंगे, जैसे लिथियम, सोडियम, तो नेगेटिव चार्ज जो होगा वो पॉलीमर की बैकबोन पे आएगा। यहां पे देखिए रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन होगा, और ये देखिएगा ये CH यहीं पे लगा देते हैं, लिथियम, यहां पे नेगेटिव चार्ज, और ये मेटल है, ये पॉजिटिव चार्ज। अगला देखिएगा CH, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज आपकी इंटायर पॉलीमरिक बैकबोन पे आ गया, जिसकी वजह से अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। नाउ इट बिहेव एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, दिस पॉलीमर इज बिहेव एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, सो इसके अंदर कंडक्टिविटी आ गई। अगर हम बात करें पी डोपिंग की, अगर डोपिंग की बात कर रहे हैं तो हम पी डोपिंग, यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। इन पी डोपिंग आईसीपी इज ट्रीटेड विथ लुईस एसिड, इसको हम ट्रीट करेंगे लुईस एसिड के साथ में। लुईस एसिड एग्जांपल ले लेता हूं आपको, I2Br2, ठीक है, और साथ में आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गए, I2Br2, आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड, इनके साथ अगर हम ट्रीट करते हैं तो यहां पे देखिए अभी एन डोपिंग में नेगेटिव चार्ज आया था पॉलीमरिक बैकबोन पे, अब क्या आएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा पॉलीमरिक बैकबोन पे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। I2Br2 आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, भाई इनके पास एक इलेक्ट्रॉन कमी है तो आसानी से ले लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन इस चेन में से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो भाई जब दे रहा है तो प्लस का चार्ज आएगा चेन पे, और जो ले रहा है उस पे नेगेटिव चार्ज, तो अब इंटायर चेन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। तो अब जो पी डोपिंग है, फिर एक बार समझिएगा दोबारा, पी डोपिंग लुईस एसिड के साथ में हम करेंगे। जब लुईस एसिड के साथ करेंगे तो ये पॉलीमर की बैकबोन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या करेगी, कंडक्टिविटी शो करेगी, और यहां पे ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। एंड पॉजिटिव चार्ज क्रिएटेड ऑन दी पॉलीमरिक बैकबोन, यहां पे ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस होगा, ठीक है। बात करेंगे लुईस एसिड के साथ जब ट्रीट करेंगे तो ऑक्सीडेशन होगा, और इंटायर पॉलीमरिक चेन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो डोपिंग पे एक बार फिर समझिएगा दोबारा से। देखिए डोपिंग दो तरीके की होती है, एक एन डोपिंग, दूसरी पी डोपिंग। एन डोपिंग में बहुत कायदे समझा दे रहा हूं क्योंकि यही डोपिंग वाला है, बाकी तो सब थ्योरेटिकल इसमें है, समझिएगा, बाकी भी समझाता हूं आपको। तो डोपिंग की बात करता हूं तो एन डोपिंग और पी डोपिंग। एन डोपिंग में हम करते हैं, एन डोपिंग में हम आईसीपी को ट्रीट करते हैं लुईस बेस के साथ में, जो कि क्या है, डोनर है, ठीक, इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, आयरन क्लोराइड, ये सारे हम लुईस बेस है हमारे। अब ये जब भी डोनेट करेगा तो यहां पे रिएक्शन होगा, जब भी रिएक्शन कराएंगे हम पॉलीमर की इस लुईस बेस के साथ में, तो यहां पे रिएक्शन टेक्स प्लेस होगा और पॉलीमरिक बैकबोन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब भाई चार्ज क्रिएट हो गए तो कंडक्टिविटी आ गई, ठीक। दूसरी चीज, अब पी डोपिंग में हम क्या करेंगे, लुईस एसिड के साथ ट्रीट कराएंगे, एक आईसीपी को ट्रीट कराएंगे लुईस एसिड के साथ में, और जब लुईस एसिड के साथ ट्रीट कराएंगे तो पॉलीमरिक बैकबोन पे पॉजिटिव, देखो इस वाले में नेगेटिव चार्ज आ रहा था
और पी डोपिंग में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा पॉलीमरिक बैकबोन पे और यहां पर रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एन डोपिंग और पी डोपिंग। एक बार फिर समझिएगा, इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर पहला हो गया पॉलीमर हैविंग कॉन्जुगेट पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसमें पूरी पॉलीमरिक चेन पे सिंगल और डबल बॉन्ड होंगे अल्टरनेट, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी हो जाएगी। हो सकता है ये लीनियर हो सकता है ये रिंग स्ट्रक्चर हो, जिसकी वजह से इसके अंदर आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। तो पहला तो ये हो गया हमारा पॉलीमर हैविंग कॉन्जुगेट इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और दूसरा हमारा हो गया डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर। डोप्ड दो प्रकार का हो गया, एन डोपिंग और पी डोपिंग। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं एक्सटेंसिवली कंडक्टिंग पॉलीमर की। एक्सटेंसिवली कंडक्टिंग पॉलीमर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कंडक्टिंग एलिमेंट फिल्ड पॉलीमर और दूसरा होता है ब्लेंडेड कंडक्टिंग पॉलीमर। तो जो कंडक्टिंग एलिमेंट फिल्ड पॉलीमर है, इसमें हम क्या करेंगे कि मेटालिक ऑक्साइड्स, कार्बन ब्लैक और मेटल फाइबर्स हम इसमें मिक्स कर देते हैं। ठीक है, मिक्स क्या कर देते हैं, बेसिकली फिल कर देते हैं। वर्ड याद रखिएगा, फिलिंग करेंगे। जैसे अभी मौसम था होली का, अभी होली खत्म हुई, होली में हमने सब बनाई, क्या बनाई थी, गुजिया बनाई थी, सबकी घरों में बनी थी। और गुजिया में क्या करते हैं भैया, सीधी बात है कि हम मैदे के अंदर मावा जो खोया होता है, ठीक है, उसको फिल कर देते हैं और मैदा बंद कर देते हैं। मैदा तो मीठा नहीं होता है, लेकिन उसका मावा होता है, जो खोया बना है, जो इनके अंदर फिलिंग स्टफ डाला गया है, उसके अंदर स्टफिंग हुई है, वो मीठी होती है, जिसकी वजह से गुजिया कैसे आती, मीठी हो जाती। तो बिल्कुल सेम अब हम जो नॉन कंडक्टिंग पॉलीमर है उनके साथ में कुछ हम सब्सटेंसेस, मैंने कहा था ना एक्सटर्नल सब्सटेंसेस हम ऐड करेंगे। तो हम उसके अंदर मेटालिक ऑक्साइड या लिख लो मेटल ऑक्साइड्स, कार्बन ब्लैक और मेटल फाइबर्स, इनको हम क्या करेंगे, इसके अंदर फिल कर देंगे। फिल करते ही क्या हो जाएगा, इसके अंदर कंडक्टिविटी आ जाएगी। ठीक है, तो कंडक्टिंग एलिमेंट फिल्ड पॉलीमर एक ही हो गया, और दूसरा होता है ब्लेंडेड कंडक्टिंग पॉलीमर। ब्लेंडेड कंडक्टिंग पॉलीमर में करते क्या है कि ब्लेंडिंग करते हैं। ब्लेंडिंग कैसे करेंगे कि ब्लेंडिंग जो कन्वेंशनल पॉलीमर है, हमारे जो भी कन्वेंशनल पॉलीमर हैं, उनको कंडक्टिंग पॉलीमर के साथ में हम ब्लेंड कर देते हैं। ठीक है, 2 और मोर पॉलीमरिक मटेरियल आर ब्लेंडेड टुगेदर, एक दूसरे के साथ ब्लेंडिंग कर देते हैं। जैसे मैं बहुत अच्छा एग्जांपल आपको यहाँ पे दूंगा, क्योंकि खाने पीने का एग्जांपल यहाँ पे भी जाता, तो यहाँ पे भी दूंगा मैं आपको खाने का एग्जांपल। जैसे यहाँ मैंने आपको गुजिया बताई थी, अब ब्लेंडिंग में मैं मिक्स वेज, आप सुने होंगे, घर में बनता भी होगा। ठीक है, या रेस्टोरेंट में हम जाके ऑर्डर भी करते होंगे। तो मिक्स वेज क्या है, बेसिकली हमने बहुत सारी वेजिटेबल्स ली, उनको एक साथ मिक्स किया और सर्व कर दिया। अब सभी वेजिटेबल का टेस्ट उसके अंदर आ गया, तो नाउ इट हैव डिफरेंट टेस्ट। ठीक है, एक अलग टेस्ट आ गया। तो ब्लेंडिंग कंडक्टिंग पॉलीमर में भी हम यही करते हैं, जो कन्वेंशनल पॉलीमर है, जो नॉन कंडक्टिंग है, उनको कंडक्टिंग पॉलीमर के साथ में हम ब्लेंड कर देते हैं। नाउ अब वो जो पॉलीमर है वो कैसा बिहेव करेगा, वो कंडक्टिंग पॉलीमर जैसा बिहेव करेगा। कंडक्टिविटी इसके अंदर आ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक, तो 2 और मोर कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग बोलो, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग पॉलीमर्स आर ब्लेंडेड टुगेदर, एक साथ मिक्स कर देते हैं। अब उसके अंदर आगे क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी आ गई। इससे क्या है बेटा कि हम आसानी से ब्लेंडेड करने से क्या है, बहुत फायदे हैं। अभी मैं अलग से ब्लेंडिंग भी पढ़ाऊंगा। ब्लेंडिंग का फायदा क्या है कि ब्लेंडिंग करने से तो पॉलीमर की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है, दे आर लाइट इन वेट। ठीक है, बहुत हल्के होते हैं, और अब इसके अंदर कंडक्टिविटी भी आ गई, तो इनका इस्तेमाल कई जगह पे और आसानी से प्रोसेस हो सकते हैं। प्रोसेसिबिलिटी बहुत आसान होती है, इजी टू प्रोसेस है। इसकी जो पर्टिकुलर जो हमने कन्वेंशनल पॉलीमर बताया था तुमको, अगर हम ब्लेंडिंग कर देते हैं तो जो नई प्रॉपर्टी, जैसे फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल, ये सब नई प्रॉपर्टीज आ जाएंगी उसके अंदर, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। ठीक, और ये बिहेव कैसे करने लगेगा, कंडक्टिंग पॉलीमर जैसा बिहेव करने लगेगा। ठीक है, एक बार जल्दी से क्लासिफिकेशन और रिकॉल कर देते हैं, फिर उसकी एप्लीकेशन बता के इसको रीड कर देते हैं। देखिएगा, टाइप ऑफ कंडक्टिंग पॉलीमर, इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर, एक्सट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर। इंट्रिंसिकली में हम पॉलीमर हैविंग पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ऐसा पॉलीमर जिसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, अल्टरनेट, डबल और सिंगल बॉन्ड हो। अगर अल्टरनेट, डबल और सिंगल या रिंग स्ट्रक्चर भी हो सकता है। ठीक है, तो रिंग स्ट्रक्चर में जैसे बेंजीन का आपने देखा है, अल्टरनेट, सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, जैसे फिनॉल का आपने स्ट्रक्चर देखा है। तो ये जो पॉलीमर हैविंग कंजुगेट इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर कंडक्टिविटी आ जाएगी, बाई बैंड बन जाएंगे अलग अलग।
बैंड वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होंगे और आसानी से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएगा, जिसकी वजह से ये कंडक्टिविटी शो करेगा। डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर, डोपिंग होती क्यों है पहली बात तो, और हम कर कैसे सकते हैं। मैंने बताया आपको, क्योंकि जो पॉलीमर है वो लो कंडक्टिविटी रखता है, और लो कंडक्टिविटी रखते हैं साथ साथ इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल भी लो होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हम इसको ऑक्सीडाइज और रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक, जो हमने लुईस बेस और लुईस एसिड के साथ किया हुआ है। तो एन डोपिंग, पी डोपिंग, दो प्रकार की डोपिंग हो गई। एन डोपिंग में हम लेते हैं लुईस बेस और पी डोपिंग में लेते हैं लुईस एसिड, अपोजिट रखिएगा। एन डोपिंग में होता है रिडक्शन और पी डोपिंग में होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मैंने लिख दिया है यहाँ पे, शॉर्ट में देख लीजिएगा। एन डोपिंग में हमारा नेगेटिव चार्ज आता है पॉलीमरिक बैकबोन पे, और पी डोपिंग में हमारा पॉजिटिव चार्ज आता है पॉलीमरिक बैकबोन पे, इसके वजह से कंडक्टिविटी ये शो करते हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं कंडक्टिंग एलिमेंट फिल्ड पॉलीमर। इसमें क्या करेंगे, जो भी कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं उनको उस पॉलीमर के अंदर फिल्ड कर देंगे, और जब कंडक्टिंग एलिमेंट फिल्ड कर देंगे, जैसे मैंने लिखा मेटल ऑक्साइड्स, कार्बन ब्लैक्स और मेटल फाइबर, ठीक है, इनको हम अगर फिल्ड कर देते हैं तो इनके अंदर कंडक्टिविटी आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिंग एलिमेंट फिल्ड पॉलीमर। ठीक है, दूसरा ब्लेंडेड कंडक्टिंग पॉलीमर में हम कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल पॉलीमर को हम एक साथ ब्लेंड करके अब हम कैसा बिहेव करेगा ये पॉलीमर, जब हमने कंडक्टिंग पॉलीमर्स के अंदर फिल्ड कर दिया है तो अब ये ब्लेंडेड कंडक्टिंग पॉलीमर जैसा बिहेव करेगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टिंग पॉलीमर। बहुत वेरियस एप्लीकेशंस हैं, हम अपने घरों में बहुत जहां इस्तेमाल करते हैं, इवन आप नहीं जानते हो, वो कंडक्टिविटी, जैसे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में बहुत इस्तेमाल हो रहा है, हम एलईडी वगैरह में इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑप्टिकल डिवाइसेस में यूज कर रहे हैं, रिचार्जेबल, आपके मोबाइल की जो बैटरी है लिथियम आयन बैटरी है, वो भी आजकल खूब, इसमें भी नोबेल प्राइज भी मिला है, पिछली बार नोबेल प्राइज मिला हुआ है इस पे, लिथियम आयन की बैटरी के, लिथियम आयन जो पॉलीमर कंडक्टिंग पॉलीमर है। इन रिचार्जेबल लाइट वेट बैटरीज बना सकते हैं, इन ऑप्टिकल डिस्प्ले डिवाइसेस, एलईडी वगैरह में खूब यूज हो रहा है, एलईडी और एलसीडी, इन दोनों में हम इसको खूब यूज कर रहे हैं, ऑप्टिकल डिस्प्ले डिवाइसेस है ये दोनों। ठीक, इन वायरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट एंड एयर स्पेस, जो एरोस्पेस कंपोनेंट है, क्योंकि हवाई जहाज जितने हल्के होंगे उतना अच्छा है। ठीक है, तो वायरिंग करते हैं एयरक्राफ्ट की और एरोस्पेस, ठीक है, कंपोनेंट बनाते हैं। टेली कम्युनिकेशन, जो आप देख रहे हो फाइबर, आपने वर्ड सुना होगा, ठीक है, फाइबर पड़ा हुआ है जिसकी वजह से डेटा या नेट आ रहा है, ठीक है, ये बेसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर ही है। इन सोलर सेल्स, ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग बायोलॉजिकल भी आपको बता रहा हूं एप्लीकेशन, जब हम ड्रग की डिलीवरी पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर कराना होता है तो हम उसको पर्टिकुलर पॉलीमर के साथ में ही, ड्रग डिलीवरी सिस्टम फॉर ह्यूमन बॉडी, ठीक है, इसको हम पॉलीमर के साथ ही भेजते हैं, ठीक है, जिसके कंडक्शन वगैरह, इंपल्स वगैरह कुछ नर्वस सिस्टम का संबंधित है, तो यहां भी यूज करते हैं हम। तो ये हो गया हमारा कंडक्टिंग पॉलीमर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे टॉपिक, हमारा बेसिकली एग्जाम में कई बार आया है। ठीक, तो हम कोशिश करेंगे इसको अच्छे से तैयार करेंगे, मैंने नोट्स दिए हुए हैं आपको, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और एक दो बार आप गो थ्रू हो जाइएगा मेरे लेक्चर के साथ में, तो आपको कंडक्टिंग पॉलीमर एकदम से समझ में आ जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, और दूसरी चीज बेटा, घर में रहिए, सेफ रहिए, लॉकडाउन को फॉलो करिए, ठीक, और कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी जो भी दे चुका हूं आपको, जितना भी सिलेबस आपके पास पहुंच चुका, ऑलमोस्ट सभी कुछ पहुंच चुका है, तो आप रिवाइज करना शुरू करिए, क्वेश्चन क्वेरीज करिए, व्हाट्सएप पे मुझे भेजिए, मेरी मेल पे मुझे दीजिए, ठीक है, मैं आपकी उन क्वेरीज को सॉल्व करूंगा। इस वीडियो को जितने भी फ्रेंड्स हैं उन पे आप सर्कुलेट करके आप उनको भी लाभान्वित करने की कोशिश करिए। एंड वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे होम, परिवार का ध्यान रखिए, अच्छी चीजें पढ़िए इस समय, और अपने आप को कंसंट्रेट करने की कोशिश करिए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में है। थैंक यू।